Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of exercise, miscellaneous exercise of chapter 9 differential equation. So here is the problem 13. dy upon dx plus y cot x is equal to 4x cosecant x. Y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. It means this is a question of particular solution. So we have to find particular solution of this given differential equation. So first of all, we have to decide कि this is which kind of differential equation. Plus cot x y is equal to 4x. So it is a linear differential equation of which kind? Compare with dy upon dx plus py is equal to q. So p is equal to cot x, q is equal to 4x cosecant x. Clear? So we have to find the integrating factor first. तो integrating factor क्या होता है? E की power p dx. Clear? So e की power p cot of x dx. So it implies e की power log sin x. क्योंकि cot x की इंटीग्रेशन होती है log sin x. So it implies ये आ गया sin x, e से log क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा. So sin x. So your integrating factor is sin x. Now you have to use the formula to find out the solution. So हम formula use करते हैं. तो solution of given equation is क्या होगा? y into integrating factor is equal to q. q कितना है? q है 4x cosecant x into sin x dx plus c. तो cosecant होता है 1 upon sin. तो ये क्या हो गया? It is cancel out. So y sin x 4 outside, इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा x square upon 2 plus c. Now you have to put the value of y and x to find out the value of c, to find out the particular solution. So y sin x is equal to 2x का square plus c. Put x is equal to pi by 2 and y is equal to 0. तो y की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया. x की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c. तो c इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सॉल्यूशन. सो यू विल गेट योर आंसर. सो योर आंसर इज y sin x is equal to 2x का स्क्वायर माइनस पाई square upon 2. So this is the particular solution of given differential equation. Pause the video to note down. Now come to 14th question. X plus 1 dy upon dx is equal to 2 e की power minus y plus 1. Y is equal to 0 when x is equal to 0. So I think y is equal to 0. Yeah. So this is a particular solution. Again we have to find. So सबसे पहले dy upon dx निकालते हैं. So that is minus 1 upon x plus 1. अब separate the variable. Variable को separate करते हैं. So ये आ गया 1 upon 2 e की power minus y minus 1 dy is equal to dx upon x plus 1. We have to integrate now. We have to integrate now. Now solve this one. इसको solve करते हैं 2 upon e की power y minus 1 dy is equal to dx upon x plus 1. टेक एलसीएम और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा e की पावर y 2 माइनस e की पावर y dy is equal to dx upon x plus 1. इसकी ddx ऊपर बन रही है बट सिर्फ एक ही चीज की कमी है, नेगेटिव साइन की. तो हमने अंदर और बाहर क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया. अब नाउ इंटीग्रेट दिस. माइनस
log of 2 minus e की पावर y is equal to log of x plus 1. क्लियर? तो जो c है उसको भी log में ले लेते हैं, log c. क्लियर? अब इसको मैं इधर लाता हूं, सो माइनस बाहर आ गया, log 2 माइनस e की पावर y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log c. क्लियर? log a प्लस log b, log a इंटू b इज इक्वल टू log c. अब हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, x की भी 0, y की भी 0. सो माइनस log x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की 0, एनीथिंग पावर 0 1, 2 माइनस 1 1, x की 0 1, तो ये 1 आ गया, log c. तो log 1 होता है 0. तो अगर मैं यहां log नहीं लगाता हूं c के, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो बेटर ये है कि यहां log नहीं लगाता हूं, तो इजी हो जाएगा ये c. ये क्या बन जाएगा, c. यहां log नहीं लगाता हूं तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0. पुट करते हैं c की वैल्यू 0. व्हाट यू विल गेट, यहां पे पुट कर दो तो ये 0 आ गया, तो ये बना माइनस log 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू log x प्लस 1. क्लियर? इसकी पावर 1, तो 2 माइनस e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1. 1 अपॉन 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1, 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन. आप लॉग लगा के करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे भी सॉल्यूशन आ जाता. पॉज द वीडियो टू नोट. कम टू 15 क्वेश्चन. 15 क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants presented at any time. तो सबसे पहले तो मैं लेट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है ये, सो लिखा नहीं, सॉल्यूशन लेट y be the number of population at any time t. ठीक है, y जो है वो पॉपुलेशन मान लेते हैं किसी भी टाइम t पे. तो व्हाट इज गिवन टू यू कि पॉपुलेशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन टू यू. तो इसका मतलब क्या होता है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू ky. जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट लग जाता है, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, dy ओके अपॉन y इज इक्वल टू k dt. इंटीग्रेशन ये बन गया log ऑफ y इज इक्वल टू kt प्लस c. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब जो भी चीजें हमें बताई गई होंगी इनिशियल स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, वी हैव टू फाइंड दैट. अभी तक हमने क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के ये कंक्लूजन निकाला है. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू आफ्टरवर्ड, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 in 1999 at initial stage, case first at 1999 या in 1999, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 0. पॉपुलेशन क्या माना है, y, वो कितना है 20,000. क्लियर? इनिशियल स्टेज पे ये है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा log 20,000 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0, c की वैल्यू आ गई. क्लियर? तो ये इनिशियल स्टेज पे हमारे पास जो c की वैल्यू आई वो आई. नेक्स्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट कहता है 25,000 in the year of 2004, what will the population of the village in 2009?
25,000 कितना हो जाएगी 2004 में, 2004 में। ओके, केस सेकंड इन 2004, ठीक है। 2004 में पॉपुलेशन कितना है 25,000। क्लियर? चलो पुट करते हैं। सो लॉग अगेन लॉग 25,000 प्लस इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी लॉग 20,000। सो ये क्या बन गया हमारे पास लॉग ए, इसको इधर लाते हैं माइनस लॉग बी, तो वो हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू के टी। 1 2 3 1 2 3 5 5 जा 5 4 जा। सो के टी इज इक्वल टू लॉग 5 अपॉन 4। अच्छा, 2004 में ये पॉपुलेशन इतनी होगी। जब इनिशियल स्टेज था 0 यानी कि 99 में, तो कितने साल का डिफरेंस हो गया 5 साल का। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां पे टी की वैल्यू कितनी आई, टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। सो पुट कर दो। सो के की वैल्यू आ गई 1/5 लॉग ऑफ 5/4। क्लियर? ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। सी की दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर के लिए जो क्वेश्चन था वो क्या कहता है, किस एज विल बी द पॉपुलेशन इन 2009। सो 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी। केस थर्ड, हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें टाइम कितना दे रखा है 2009, 99 से शुरू किया था 10 ईयर्स। क्लियर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इनकी सबकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। अब हमने यहां तक पहुंच गए थे, कहां तक, ये देखो के टी कितना आ गया था, के की वैल्यू आ गई थी 1/5 लॉग 5/4। सब में वैल्यू पुट कर दो। यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/5 लॉग 5/4 इंटू 10 प्लस सी की वैल्यू लॉग कितनी, सी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 20,000। क्लियर? अब इसको इधर लाते हैं। ये 5 से ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया। लेट अस सी हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनता है। लॉग y/20,000 इज इक्वल टू 2 लॉग 5/4। ये पावर में चला गया। सो लॉग y/20,000 इज इक्वल टू लॉग 25/16। लॉग से लॉग क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। सो y/20,000 इज इक्वल टू 25/16। सो y इज इक्वल टू 25/16 इंटू 20,000। सो ये 4 4 जा 16, 4 5,000, 4 से कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 20 0। सो y इज इक्वल टू 25 इंटू 1250। नाउ y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 125 को 225 से, तो ये पहला तो 625 आ गया, दूसरा आ गया 250, 5 2 11, so 31250. So this is the population in the year of 2000. कितना था 2000 था 9, क्योंकि 2004 था, 99 का हमें दे रखा था. So like this you can find out the solution. Pause the video to know. 16, 17 and 18 question of this exercise are of MCQ nature. तो ये MCQ हैं.
छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के। ओके, जनरल सॉल्यूशन इसका बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो इसकी फॉर्म देखते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहीं रख लेता हूं, dy को, dy वाली टर्म को, dx को उधर ले जाता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया। सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लो, dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन आ गया log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। क्यों? क्योंकि दोनों ही log में थे। सो ये बन गया log y इज इक्वल टू log xc। log log कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू xc इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू 17। जनरल सॉल्यूशन बताना है इस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये कौन सी है? सबसे पहले dx अपॉन dy हमें दे रखा है प्लस इज इक्वल टू q1। ये कौन सा नेचर है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p यानी p1 dy, क्योंकि ये dx अपॉन dy है। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आएगा इसका? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c dy प्लस। सो दिस इज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ this kind of linear differential equation. Pause the video to note down. First MCQ of this chapter. Again, this is very good question. General solution हमें find out करना है इसका। Let us see कि कैसे find out कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम dy upon dx बनाते हैं। So इस टर्म को उधर ले जाते हैं, y e की पावर x प्लस 2x dx। dx को यहां लाते हैं, ex को वहां ले जाते हैं, dy अपॉन dx। देन वी विल कम टू नो कि ये कौन सा नेचर बनाएगा, e की पावर x माइनस 2x अपॉन e की पावर x। ये कैंसिल आउट हुआ, dy अपॉन dx प्लस y इधर लाए, माइनस 2x इसको ऊपर ले गए, e की पावर माइनस x। सो आई थिंक दिस इज ए फॉर्म ऑफ linear differential equation of first nature. So ये compare with किसके साथ? dy upon dx plus py is equal to q। ये p और q किसकी टर्म होनी चाहिए? तो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x। सो कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू कितनी आ गई? 1, q की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2x e की पावर माइनस x। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर p dx और e की पावर 1 dx। इट इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? e की पावर x। नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q माइनस 2 यानी माइनस बाहर, x e की पावर माइनस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 0 हो गया। सो एनीथिंग पावर 0 1 हो जाता है। सो ये बन गया माइनस 2 बाहर आ गया, x dx प्लस c, y e की पावर x माइनस 2 x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, कैंसिल आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? माइनस x का स्क्वायर e की पावर माइनस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, प्लस c e की पावर माइनस x। सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ this kind of differential equation. So I completed all the questions of miscellaneous NCERT miscellaneous
and I hope you understood well. I tried to solve each and every question in the easiest way. But still, if you face any kind of problem or difficulty while solving, you can write in the comment box. I will make the separate video for that particular question. Till that, Jai Hind.